We have now received funds from the EU in a size is about 44 billion euros, which we are in 90% investing in Polish defense capabilities. So this money is like made in India, we're saying made in Poland. रक्षा क्षेत्र अब सिर्फ सरहदों की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। जो देश अपने सेना के लिए हथियार खुद बनाता है वही असली महाशक्ति है। आज अर्थ के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे गठबंधन की जिसकी गूंज वारसा से नई दिल्ली तक सुनाई दे रही है। पोलैंड ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसने रक्षा एक्सपर्टों और अर्थशास्त्रियों दोनों को चौंका कर रख दिया है। 44 बिलियन यूरो का विशाल फंड और भारत में पोलिश ड्रोन का निर्माण। ये कोई मामूली खबर नहीं है। पोलैंड के विदेश राज्य सचिव व्लादिस्लाव ने भारत के साथ रक्षा सहयोग पर जो खुलासा किया है वो भारत के मेक इन इंडिया अभियान को एक नई वैश्विक ऊंचाई पर ले जाने वाला है। आखिर क्या है पोलैंड का मेड इन पोलैंड प्लान और कैसे ये भारत की डिफेंस इकोनॉमी को बूस्ट देगा, आइए अर्थ में विस्तार से समझते हैं। दरअसल पोलैंड के विदेश राज्य सचिव के मुताबिक पोलैंड को यूरोपीय संगठन यानी ईयू से लगभग 44 बिलियन यूरो का फंड प्राप्त हुआ है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि पोलैंड इस भारी भरकम राशि का 90% हिस्सा अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में निवेश कर रहा है। पोलैंड ने इसे मेड इन पोलैंड का नाम दिया है, जो ठीक भारत के मेक इन इंडिया की तर्ज पर है। पोलैंड अब दुनिया के लिए ऐसी यूनिक रक्षा तकनीकें विकसित कर रहा है जिसकी मांग भारत जैसे बड़े देशों में बहुत ज्यादा है। अर्थ के नजरिए से देखें तो ये पोलैंड का रक्षा निर्यात यानी डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ाने का बड़ा दाव है और भारत इसमें उसके सबसे महत्वपूर्ण साझेदार बनकर उभरा है। अब क्या कुछ कहा पोलैंड की ओर से, जरा ध्यान सुनिए। I think it's a very important cooperation. We indeed spent almost close to 5% of GDP on defense, and we're going to continue doing so in the future. We have now received funds from the EU in a size is about 44 billion euros, which we are in 90% investing in Polish defense capabilities. So this money is like made in India, we're saying made in Poland. And some of these things which we are already producing is fairly unique, and there's a big demand for that in other countries, including in India. We have had interest on some specifics. I'm not going to discuss the details, but some specific forms. Some armaments is very of great interest to India. We also started to producing Polish drones in India, which are very efficient. So yes, we understand this made in India concept. Excuse me, made in India concept. Yeah, so we are willing to share some technologies in production, but I was also talking to the Indian firms who are prepared to do the same thing in Poland. So there is and are willing to form some joint ventures with Polish defense companies to produce some specific things there. So it's a big market. It's Europe is trying to become more independent in spheres of defense, and one of these things is we have to have big defense industries, which we neglected because we had 30 years of peace and nobody wanted to spend money on that. India was slightly different because we never had complete security, so you always maintained your defense production, but you purchase very many items abroad, and we want to cooperate with that. And as I said, we understand the concept of sharing technologies and putting production in a country like India, and cooperating with India also in Poland. So this is why we have accelerated these meetings of the working groups of the military to look at concrete possibilities, because now we are getting to the stage that we are not talking about let's be friends and let's produce something, but we are discussing what we are going to produce, where and how.
and so that's very important. तो सुना ना आपने, पोलैंड के विदेश राज्य सचिव ने एक बड़ी सफलता का जिक्र किया। भारत में पोलिश ड्रोन का निर्माण शुरू हो चुका है। ये सिर्फ एक खरीद बिक्री का सौदा नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी शेयरिंग का एक जीवंत उदाहरण है। पोलैंड ने समझा है कि भारत अब सिर्फ खरीदार यानी कि बायर बनकर खुश नहीं रहने वाला है। भारत को तकनीक और स्थानीय उत्पादन यानी कि लोकल प्रोडक्शन चाहिए ही चाहिए। पोलैंड अपनी रक्षा तकनीक साझा करने के लिए तैयार है और पोलैंड के विदेश राज्य सचिव ने बताया कि कई भारतीय कंपनियां अब पोलैंड में भी ज्वाइंट वेंचर्स बनाने के लिए तैयार हैं। यानी अब व्यापार एक तरफा नहीं होगा। भारतीय कंपनियां पोलैंड में और पोलिश कंपनियां भारत में रक्षा उपकरणों का उत्पादन करेंगी और ये एक टू वे इकोनॉमिक कॉरिडोर है। बात सिर्फ हथियारों की नहीं है। पोलैंड भारत के साथ अंतरिक्ष सहयोग पर चर्चा कर रहा है। पोलिश कंपनियां भारत सरकार के लिए भारत में ही उपग्रह यानी सैटेलाइट्स बनाने की संभावनाएं तलाश रही हैं। इसके अलावा स्वच्छ पेयजल, सीवेज ट्रीटमेंट और गहरी कोयला खदानें यानी कि डीप माइनिंग की तकनीक साझा करने पर भी बात बन चुकी है। पोलैंड की गहरी खदानों की तकनीक भारत की खुली खदानों यानी ओपन माइंस के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। खैर, अक्टूबर में पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क की भारत यात्रा इस साझेदारी पर अंतिम मुहर लगाएंगी। 44 बिलियन यूरो का निवेश और भारत के साथ तकनीकी तालमेल ये दिखाता है कि भारत अब वैश्विक रक्षा अर्थतंत्र यानी कि ग्लोबल डिफेंस इकोनॉमी का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। पोलैंड के साथ ये गठबंधन भारत के लिए न सिर्फ या यूं कह ले कि न केवल सुरक्षा बल्कि रोजगार और विदेशी निवेश के नए द्वार खोलेगा। रक्षा क्षेत्र में भारत की इस छलांग पर आपकी क्या राय है? और आपसे सवाल है कि क्या लगता है आपको, मेड इन पोलैंड और मेक इन इंडिया का ये मिलन चीन और अन्य देशों को चुनौती दे पाएगी? हाँ या ना में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। देखते रहिए अर्थ, जहां हम समझते हैं देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था के असली मायने। जय हिंद।